Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 1 real numbers exercise 1.1 class 10 NCERT maths book. Question number 4 is use Euclid division lemma to show that square of any positive integer is of the form 3m plus 1 for some integer m. Earlier in question number 2, we studied about the statement that you have to prove any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 or 6q plus 5. But there is a little bit difference between this statement and that statement. Both of the statements you have to prove with the help of Euclid division lemma, but here in this statement there is square of any positive integer, square of. और जो हमने सेकंड क्वेश्चन में स्टेटमेंट पढ़ी थी उसमें क्या था, एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर. यहाँ पर इंटीजर्स भी कोई भी हो सकता है, चाहे वो ओड है चाहे इवन है, और उसका स्क्वायर जो होगा दैट वी हैव टू प्रूव दैट इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1. So any positive integer, let us suppose a is any positive integer. Let a is any positive integer. In Euclid division lemma, we follow the equation a is equal to bq plus r. So a is any positive integer. What about b? b हम क्या लेते हैं, जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि जो नंबर यहाँ जो जिस फॉर्म में हमने उसको प्रूव करना है स्टेटमेंट को, उसमें एक नंबर रिपीट हो रहा है दैट इज 3m और 3m plus 1 एंड सो ऑन. तो हम यहाँ पर b को ये नंबर सपोज करेंगे. सो लेट b इज इक्वल टू 3. And what is about r? A is equal to bq plus r. R is less than b but greater than or equal to 0. So r should be equal to 0, 1 and 2. Why? Because 0 less than equal to r less than b. क्योंकि r की वैल्यू जो है that is always less than b but greater than और इक्वल टू 0. तो हम यहाँ पर 0 भी ले सकते हैं और 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, राइट. बट 3 नहीं ले सकते बिकॉज वो b के इक्वल हो जाएगा, हमने b से कम लेना है. एंड नाउ दीज 3 वैल्यूज ऑफ r 0, 1, 2 वी विल बी पुटिंग इन द इक्वेशन a इज इक्वल टू bq प्लस r. तो अब यहाँ q क्या है, q इज ऑल्सो पॉजिटिव इंटीजर. यूक्लिड डिविजन लेमा में जो q यूज होता है दैट इज ऑल्सो ए पॉजिटिव इंटीजर. तो a और q हम एज इट इज ले रहे हैं, r की वैल्यू 0, 1, 2 और b की वैल्यू 3. सो वन बाय वन वी विल बी पुटिंग these values of r in Euclid division lemma. A is equal to bq plus r. Now what is a? a तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, एज इट इज रहेगा. when r is equal to 0 then b a is equal to b कितना है 3. q as it is positive integer and r is 0, so a is equal to 3q. now what about a when r is equal to 1? जब r हम 1 लेंगे, इस इक्वेशन में r को 1 पुट करेंगे और b को हम हर बार 3 पुट करेंगे, then a will be equal to b is 3, q as it is plus r that is 1. So a is equal to 3q plus r when r is equal to 1. When r is equal to 2, r is equal to 2, then what is a? a is equal to, अब हम क्या करेंगे, r को यहाँ 2 पुट करेंगे, b as it is again 3, q b as it is, so a will be equal to 3, b की जगह 3q plus r is 2. So in this way we have got positive integer a in 3 forms when we put r equal to 0, r equal to 1 and r equal to 2. So 3 forms of a are 3q plus 1 and 3q plus 2. But
we are talking of here not positive integer, square of positive integer. Now what is square of positive integers? Firstly, when r is equal to 1, then a is equal to 3q. Then what will be a square? A square will be equal to 3q whole square. क्योंकि a 3q के इक्वल है तो a square is equal to 3q square. Now 3q square is equal to 9q square. अब अगर हम 9q square को देखें तो यहाँ पर इसमें +1 नहीं आ रहा. That means this cannot be written in the form of 3m plus 1. But we can write 9q square in the form of 3m. वो कैसे करेंगे? We can write 9 as 3 multiply 3q square. अब हम क्या करेंगे? इस 3q square को m पुट कर दें अगर, तो ये हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? 3m. Right? We write here 1 and give the reason that where m is equal to 3q square. क्योंकि हमने 3q square को m के इक्वल रखा है तो यहाँ हमें बताना पड़ेगा where m is equal to 3q square. Now come to the square of a when r is equal to 1. Then a is equal to 3q plus 1 and a square is a square equal to 3q plus 1 whole square. Now we will be solve this whole square by using identity a plus b whole square. What is a here? 3q. What is b here? 1. तो a 3q है तो a square क्योंकि a plus b whole square की आइडेंटिटी क्या है? a square plus 2ab plus b square. So a square that is 3q square that becomes 9. 9q square. हम इसको डायरेक्टली लिखते हैं 3q square is equal to 9q square plus 2 into ab. 2 into 3q that is 6q multiply 1 that is 6q. तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा? 6q and then b square that is 1 square and that is equal to 1. So a square plus 2ab plus b square. अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास 1 आ गया. सो वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज 3m plus 1 फॉर्म. वो कैसे लिखेंगे? यहाँ ये दो जो हमारी टर्म्स हैं इनमें से हम 3 कॉमन ले सकते हैं. देन दिस विल बिकम 3q स्क्वायर प्लस 2q एंड प्लस 1. अब हम क्या करेंगे? इस पूरे एक्सप्रेशन को m के इक्वल रखते हैं अगर, तो ये हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? 3 दिस इज इक्वल टू m प्लस 1. दिस वी राइट 2 इक्वेशन 2 और ब्रैकेट में हम रीजन दे देंगे वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q. ये दो बार हमने एक बार हमने a को 3m की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, उसके बाद 3m प्लस 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया. अब हम इसके लिए चेक करते हैं. व्हेन r इज इक्वल टू 2 a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 एंड व्हाट इज द होल स्क्वायर ऑफ a स्क्वायर, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ a? दैट इज इक्वल टू होल स्क्वायर ऑफ 3q प्लस 2. यहाँ पर भी a प्लस b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे तो यहाँ क्या होगा? a स्क्वायर, a इज 3q, a स्क्वायर इज 9q स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab, 2 इंटू 3q इंटू 2 दैट इज 6 to the 12q. 2 इंटू ab हमारा क्या आया? 12q प्लस b स्क्वायर इज 2 स्क्वायर दैट इज 4. अब यहाँ हम ये देख रहे हैं कि अगर हम इसको 3m की फॉर्म में बनाएं तो इन सब में 3 कॉमन आना चाहिए. दैट मीन्स ये सारी टर्म्स 3 की मल्टीपल होनी चाहिए. और अगर हम इसको 3m प्लस 1 की फॉर्म में बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे पास प्लस 1 सेपरेट होना चाहिए. ना तो यहाँ हम पूरी इस एक्सप्रेशन में से 3 कॉमन ले पा रहे हैं और ना ही हमारे पास प्लस 1 है. सो देयर इज अनदर वे. हम क्या करेंगे? ये जो 4 है इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं. दैट इज फिर राइट हियर 9q स्क्वायर प्लस 12q और ये जो 4 है इसको 3 प्लस 1 की फॉर्म में लिखकर इस 1 को अलग लिख लेते हैं और ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया इसमें से हम 3 कॉमन ले लेते हैं. सो 3 कॉमन
तो दिस विल बिकम 3q square plus 4q plus 1 and plus 1 separate. So now here we will be putting this expression equal to 1. तो हमारा ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 3m, m हमने किसको रखा, 3q square plus 4q plus 1, 3m plus 1. दिस इज थर्ड इक्वेशन. और यहां हम रीजन मेंशन कर देते हैं वेयर m इज इक्वल टू, यहाँ m को किसके इक्वल रखा है, m को हमने डिफरेंट इक्वेशंस में डिफरेंट एक्सप्रेशंस के लिए पुट करना है. तो यहाँ पर हमने, इसलिए हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं. सो m इज इक्वल टू 3q square plus 4q plus 1. So by looking at equation number 1, equation number 2 and equation number 3, we can see that a square of any positive integer हमने क्या लिया था, a, और उसका अब उसको हमने किसके इक्वल पुट रखा, r की डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट वैल्यूज ऑफ a आ गई हमारे पास. स्क्वायर किया तो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आइदर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1, क्योंकि यहाँ 3m की फॉर्म में आ रहा है, यहाँ 3m plus 1 की फॉर्म में आ रहा है, और यहाँ पर भी 3m plus 1 की फॉर्म में आ रहा है. दैट मीन्स ये किसी और फॉर्म में नहीं आएगा, या तो 3m की फॉर्म में आएगा या 3m plus 1 की फॉर्म में, और उस फॉर्म को हमें खुद बनाना पड़ेगा देखकर कि हम उसको 3m बना सकते हैं या 3m plus 1. सो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 we can show that square of any positive integer is of the form 3m or 3m plus 1. Now question number 5 is use Euclid's division lemma to show that cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1 and 9m plus 8. Again in question number 4 we proved that the square of any positive integer is of the form 3m or 3m plus 1. वहाँ पर क्या था, square of any positive integer, और उसको दो फॉर्म में ही हमने शो करना था कि वो दो फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, 3m और 3m plus 1. But now in this question number 5 we have to prove that cube of any positive integer is of the form 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8. Again we'll be adopting the same procedure by using Euclid division lemma. Let a is any positive integer and b. Now what about b? This is very important to discuss about b here, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में ये डिस्कस किया था कि b हम वो लेते हैं जो नंबर रिपीट हो रहा होता है, जिस फॉर्म में हमने उसको रिप्रेजेंट करना होता है. दैट मीन्स 9m plus 1, 9m plus 8. अब क्वेश्चन नंबर 4 में तो क्या था कि हमारा 3m और 3m plus 1 था. सो दैट वॉज नॉट अ लार्ज नंबर, तो हमने r को 0, 1 और 2 लेकर 3 स्टेप्स में उसको सॉल्व किया था. बट अगर हम यहाँ पर बात करें कि 9m है और r को अगर हम b को अगर हम 9 लेते हैं तो दैट मीन्स r हम क्या लेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो 8 स्टेप्स में जाकर ये सम कंप्लीट होगा एंड दैट विल बी वेरी लॉन्ग प्रोसीजर. तो इसके लिए हमारा क्या सोल्यूशन होना चाहिए कि हमारा जो क्वेश्चन है वो 2-3 स्टेप्स में ही कंप्लीट हो जाए. सो नाउ वी विल बी लुकिंग हियर दैट 9, 9 and 9 एंड वी नो दैट 3 इज द फैक्टर ऑफ 9. तो हम एक ऐसा नंबर b ले लेंगे, b को हम एक ऐसा नंबर ले लेंगे जो कि इसका फैक्टर हो, एंड 3 इज द फैक्टर ऑफ 9. सो अगर हम b 3 लेंगे तो r हमें क्या लेना पड़ेगा, दैट शुड बी लेस देन b एंड इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0. दैट मीन्स r हम क्या लेंगे, 0, 1 and 2. और हमारा क्वेश्चन 3 स्टेप्स में, मतलब कि 3 स्टेप्स में हम a निकालेंगे और फिर 3 स्टेप्स में उनका क्यूब निकालेंगे. तो इस तरह से हमारा जो प्रोसीजर है ये थोड़ा सा
शॉर्ट हो जाएगा। सो वी विल बी टेकिंग बी हेयर। जब भी हमारा यहाँ पर नंबर कोई ऐसा नंबर है जिसका कोई फैक्टर छोटा है तो हम उसको बी ले सकते हैं। सो हेयर वी विल बी टेकिंग लेट बी इज इक्वल टू 3, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन लेमा में a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो वी शुड हैव a, वी शुड हैव q, b एंड r. a and q are positive integers. Let a is positive integer and q is also positive integer. जब हमने b 3 सपोज कर लिया तो r कितना होगा? That will be 0, 1 and 2. Why? Because 0 less than equal to r less than b. ये कंडीशन हमें पता है, इसलिए हमने 0, 1, 2 लिया. Now we have to follow the same steps as in question number 4 to find value of a for different values of r. So when r is equal to 0, then according to Euclid division lemma, a is equal to b cube plus r के अंदर अगर हम r को 0 पुट करें तो a क्या हो जाएगा हमारा? a is equal to b, b को 3 पुट करना है, 3 क्यू हो जाएगा प्लस आर, आर इज 0 तो 3 क्यू रहेगा, a इज इक्वल टू 3 क्यू. व्हेन r इज इक्वल टू 1 देन व्हाट इज a? a इज इक्वल टू, अब a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में a एज इट इज रखना है, b हमने हमेशा 3 लेना है, q एज इट इज रखना है प्लस r 1. नेक्स्ट r इज इक्वल टू 2 देन व्हाट इज a? a इज b क्यू प्लस r, b इज 3 एंड q प्लस r इज 2. तो हम यहाँ ये देख रहे हैं कि b भी सेम है, q भी सेम है और हर स्टेप में r की वैल्यू चेंज हो रही है. यहाँ r 0 था, यहाँ 1 और यहाँ पर 2. सो नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ द क्यूब. जैसे हमने फोर्थ क्वेश्चन में स्क्वायर्स फाइंड आउट करके उनको 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, उसी तरह से हम इन a की वैल्यूज का क्यूब निकालेंगे वन बाय वन. So if a is equal to 3 cube, then what is a cube? A cube is equal to, cube means multiplication 3 times. 3 cube multiply 3 cube multiply 3 cube. That means 27 cube. अब फिर से वही कि यहाँ पर हमें क्या करना है? प्लस 1 या प्लस 8 होना चाहिए. ना तो यहाँ प्लस 1 है ना 8 है. तो that means we can represent this 27 whole cube 27 cube in the form of 9m. तो हम क्या करेंगे? 27 को अगर हम 9 से डिवाइड करें तो that is 3. So 27 can be written as 9 multiply 3 cube. Now we will be writing this 3 cube as m. So this will become 9m. और यहाँ हम 1 लिख देते हैं और रीजन मेंशन करते हैं where m is equal to 3q cube. पहले हमारा स्क्वायर में आया था, अब क्यूब में आ रहा है. नाउ फॉर r equal to 1, a is equal to 3q plus 1. That means a cube is equal to 3q plus 1 whole cube. जैसे हमने फोर्थ क्वेश्चन में स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई थी, यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे? क्यूब की, होल क्यूब की. सो a plus b whole cube is equal to a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. Or you can say a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square. So a cube क्या होगा? 3q का क्यूब, that means 27q cube plus b cube is 1 plus 3a square b, 3 into a square क्या होगा? 9q square. 9q square को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27q square और इंटू b तो 27 3 इंटू a square b, a का स्क्वायर किया हमने. सो 3 3 से 9, 9 3 से 27 और 27 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 27q square इंटू b दैट मीन्स 1. उसके बाद प्लस फिर 3ab square. 3 अब a का स्क्वायर नहीं करना, अब b का करना है. 3 अपनी तरफ से a क्या है हमारा? 3q. सो 3 3 से 9q और इंटू b स्क्वायर, ab स्क्वायर. तो ये 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा. सो दिस विल बिकम 9q because we have to write 3a square 3ab square. So 9q
ये विल बी 9q। तो अब हम यहाँ पर प्लस क्या लिखेंगे, b क्यूब। तो ये हमारी आइडेंटिटी यहाँ कंप्लीट हो जाती है। b क्यूब दैट मीन्स 1 क्यूब एंड 1 क्यूब इज 1। क्या क्या किया हमने, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 1। अब हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, 1। तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये सारे मल्टीपल किसके आ रहे हैं, 9 की। सो वी कैन टेक 9 एज कॉमन। सो 3q क्यूब प्लस 1 प्लस 3q स्क्वायर एंड प्लस क्यूब, क्योंकि 9 हमने कॉमन ले लिया, प्लस 1। Now this can be written as 9m plus 1 and this is equation number 2, and we will mention the reason here where m is equal to, जिसको हमने m के इक्वल रखा है उसको हम यहाँ क्या लिख देंगे, m is equal to 3q cube plus 1 plus 3q square, this is plus 3q square here, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, 3q square and plus this is q. This whole expression we have put equal to m. तो हमारा ये फॉर्म क्या आ गया, 9m plus 1. Again when r is equal to 2, a is 3q plus 2 and a cube is equal to 3q plus 2 whole cube and this will be equal to a cube, 27q cube प्लस बी क्यूब, 2 टू 4, 4 टू 8, बी क्यूब हो गया हमारा 8। और ये जो 1 है, ये वाला 1 हमारा यहाँ नहीं आएगा क्योंकि हमने बी क्यूब ऑलरेडी कर लिया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये 1 जो है हमारा यहाँ से हमें मिल जाएगा, इस 1 को हम बाहर रखेंगे, सेपरेट रखेंगे, यहाँ 1 और ये 1 यहाँ पर हमारा खत्म है, यहाँ पर 1 नहीं आना। सो दिस होल एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू m, 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q इज इक्वल टू m, और 1 जो है ये हमने पहले से ही सेपरेट कर लिया है। सो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, इसका स्क्वायर करो और उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27q स्क्वायर, उसको b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54q स्क्वायर, दिस इज 3ab स्क्वायर, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये फार्मूले में आता है ना, 3ab स्क्वायर, 3 इंटू a 9q एंड b स्क्वायर 4 हो गया, तो 9 4 36q, ये हमारे पास आ गया ab स्क्वायर। अब हम यहाँ ये देख रहे हैं कि क्या हमारे पास सारे मल्टीपल्स 9 के हैं, यहाँ पर 8 नहीं है 9 का मल्टीपल, क्या हमारे पास इसमें 1 है सेपरेट, नहीं है। तो हम क्या करें, हम ऊपर देखते हैं कि क्या प्रूव करना है हमने, 9m और 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, तो 8 से हमारा काम चल गया। इस 8 को हम क्या करेंगे, बाहर लाएंगे, 8 प्लस और बाकी सारे जो भी एक्सप्रेशंस हैं, जो भी सारी टर्म्स हैं उनको कंबाइन करके लिख लेते हैं, बिकॉज दीज आर मल्टीपल ऑफ 9 प्लस 8। नाउ वी कैन टेक 9 एज कॉमन फ्रॉम दीज 3 टर्म्स, तो 9 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q एंड प्लस 8। Now we will be putting this whole expression as 1 m, this is as m, so 9m plus 8, so 9m plus 8 की फॉर्म में भी ये आ गया, इसको हम लिखेंगे 3 and where m किसके इक्वल है, m is equal to this expression 3q cube plus 6q square plus 4q. So from equation 1, 2 and 3 we can say that cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1 or 9m plus 8। तो इस तरह से हम ये प्रूव कर सकते हैं स्टेटमेंट कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m plus 1 और 9m plus 8 बाय पुटिंग b is equal to 3,
क्योंकि अगर हम 9 से करते तो भी हमारा आंसर तो हमें मिल जाना था, बट दैट विल बी लॉन्ग प्रोसीजर। और वैसे भी जब हम होल क्यूब अगर कैलकुलेट करते तो वहाँ पर हमारी कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। दैट्स वाई वी पुट हेयर बी, एंड इन दिस वे वी कैन प्रूव दैट क्यूब ऑफ। अब हम अगर ये देखें कि अगर और भी कोई नंबर लें और उसका हम क्यूब करें, कोई इंक्रीज, जैसे यहाँ पर आर की वैल्यू हम 3 ले लेते हैं, तो उसमें हम क्या करें कि उसका होल क्यूब करें, तो वो होल क्यूब भी या तो 3m की फॉर्म में आएगा, या तो 9m की फॉर्म में आएगा, या 9m प्लस 1 की फॉर्म में, या फिर 9m प्लस 8 की फॉर्म में। इन तीनों फॉर्म्स के अलावा कोई और फॉर्म हम नहीं बना पाएंगे। ये जो फॉर्म्स हैं, ये जो आ रही हैं, दिस वी हैव टू मेक आवर सेल्फ। क्योंकि जैसे यहाँ पर एक हमारा अंदर था तो हमने इसको बाहर ले लिया था, क्योंकि ये 9m प्लस 8 की फॉर्म में हम बना पा रहे थे अगर हम इनमें से 9 कॉमन ले लें तो इसलिए हमने इसको सेपरेट कर दिया। इन द सेम वे यहाँ पर ये जो क्यूब हमारा +1 बाय मिस्टेक लिखा था, दैट वाज नॉट देयर। 1 तो ऑलरेडी ही हमें मिल रहा है ना, क्योंकि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये जो 1 बीच में आया था इसको हमें पहले सेपरेट लिखना है, और उसके बाद हमें इन जो बाकी बचे हुए टर्म्स हैं उनमें से 9 कॉमन लेना है, और इसको हमें m लिखकर 9m प्लस 1 की फॉर्म में बनाना है। सो दिस वी हैव टू मेक आवरसेल्फ कि हम उस फॉर्म को कैसे बना सकते हैं। In this way we can do this type of sums by using Euclid division algorithm. Thank you.